Today, the Department of Psychology of Navya Kanya Mahavidyalaya celebrates a thoughtful and enriching seminar on happiness through humor, a positive psychology perspective on the occasion of International Day of Happiness celebrated on 20th March. In a world full of deadlines, expectations and endless notifications, somewhere in that race, we forget to pause and ask, are we truly happy? Happiness is not always loud or extraordinary. It is often found in subtle everyday moments, a sense of calm, a feeling of belonging, or even a quiet smile that needs no reason. To begin this auspicious occasion, I would like to invite our dignitaries for the ceremonial lamp lighting. Kindly honor our esteemed keynote speaker, Mrs. Mamta Ambujanani, Professor of Pandit Deen Dayal Government. Kindly Dr. Sonal Lagwa. Ma'am, please. कुछ हो जाएंगे, and maybe that's the point. Happiness was never meant to be final result. It's more like a small pause, where everything feels a little lighter. Now, I would like to invite Dr. Sonal ma'am to kindly come forward and introduce our esteemed keynote speaker. Beautiful, lovely, happy, joyous. और कोई adjective याद आ रहे हैं? Students, है ना? It is such an honor for me to introduce my dear friend and a very renowned and eminent psychologist, Dr. Mamta Ambujanani ma'am. Ma'am is presently serving as an assistant professor in Pandit Deen Dayal Upadhyay Government Degree College, Rajajipuram. She has had more than a decade-long experience of teaching students of higher education. She has done her masters from Allahabad University and qualified her UGC NET in 2012. She has also contributed expansively in the field of research in psychology. Ma'am has published several research papers in various reputed national and international journals. Her chapters have been published in very popular edited books. She has gone on to present her research work in many conferences of both national and international stature. Her project explores the intimate relationships which we form online and their nature and communication. She is widely interested in the field of organizational psychology, social psychology, cognitive psychology, and she has a diverse skill set which includes the knowledge of data analysis, SPSS, field work, experimental work and interviewing skills.
So with that brief introduction, I would like to invite Mamta ma'am to please come and enlighten us. And एक छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन अलग से जो सीवी में नहीं लिखा था बताऊंगी कि द प्राइमरी रीज़न मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया कि वो आए इज़ बिकॉज ऑफ आवर हैप्पी डिस्पोजिशन. एज यू नो हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे. सो in the face of resilience, in the face of adversity, she knows how to be happy and to motivate others. मैं परेशान हो रही हूँ सुबह से और मैम कह रही अरे हो जाएगा डोंट वरी. सो इसीलिए खूब with a lot of joy ma'am I am inviting you to enlighten us for this lovely introduction. Good morning everyone, respected principal ma'am, esteemed faculty members and my dear students. रियलिटी ये है ज़िंदगी का पहला एज ए गेस्ट स्पीकर मेरा ये आज मैं बात कर रही हूँ. हालांकि मैं इस कॉलेज में आ चुकी हूँ एक्सटर्नल एग्जामिनर के तौर पे और बच्चों से साइकोलॉजी के स्टूडेंट से मैं मिल चुकी हूँ. और बहुत सबसे अच्छी फीलिंग जो मेरे अंदर इसलिए है, मैं बहुत खुश इसलिए, हालांकि हम लोग अब खुश रहना सीख गए और सीखते रहते हैं क्योंकि दुखी होने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है. जब सोनल की कॉल आई थी मेरे पास कि हम आपको एज ए गेस्ट बुलाना चाह रहे हैं तो आई वॉज वरीड कि किस चीज़ पे. तो सोनल ने सबसे पहले बोला कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस. आई वॉज लाफिंग इन माई कॉर्नर, मतलब मैं अपने कैंपस में थी, सबने बोला कि आप क्यों हंस रही हैं. मैंने कहा मुझे बुलाया जा रहा है एज ए गेस्ट स्पीकर ऑन द डे ऑफ ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस. तो सब मतलब ये मैं कहूँगी कि एक अच्छी बात है मेरे लिए, एक अच्छा फीडबैक है जो शुरू से लेके अभी तक मुझे मिलता आया है. और ऑनेस्टली मेरी ईमेल आईडी जीमेल जो बहुत पहले शुरू हुआ था, मेरा जब ग्रेजुएशन चल रहा था 2008 आई थिंक 2007 का अराउंड, तो मैंने अपनी पहली ईमेल आईडी जब जनरेट की थी तो उसकी भी शुरुआत हैप्पीनेस से ही की थी जो कि स्पॉन्टेनियस था. देयर वाज नो फीलिंग कि मुझे कुछ प्रिटेंड करना है, कुछ दिखाना है. मेरे मन में आया कि मुझे एक ईमेल आईडी बनाना है एंड आई विल मेक विद दिस वर्ड. तो वो अभी तक मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी परसिस्ट कर रही है. एवरीबडी से कि तुम चेंज कर दो, ऐसे नो, ये मेरी आइडेंटिटी है जो मैंने अपने अंदर से शुरू की थी और अभी तक ये चलेगी और आगे भी चलेगी. तो मैं सोनल का, गगन का और पूरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का और इस कॉलेज का धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे, हम लोग आजकल बहुत मतलब सीरियस या नेगेटिव कॉनिटेशंस के साथ मुद्दों पे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है जिससे हम शायद कुछ बुरा लेके तो नहीं जाएंगे. तो बच्चों, हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग ने कहाँ सुना है या कैसे आप इसको डिस्क्राइब करते हैं, मुझे कोई बता पाएगा? अगर बताना चाहे तो कोई भी स्टूडेंट हैप्पीनेस, उसके लिए क्या है हैप्पीनेस, बस इतना बता दे प्लीज. यस यस प्लीज. व्हाट्स योर नेम स्वीटहार्ट? मधु यादव. हाँ प्लीज. वेरी गुड. और कोई? अपना फेवरेट काम करना इज हैप्पीनेस. जिस काम को करके मैं दूसरों को खुशी दे सकूं, जिस उस काम से दूसरे की जिंदगी अच्छी बन सके, वो मेरे लिए. वेरी गुड. इनके आपका नाम? शांभवी. शांभवी के लिए ये हैप्पीनेस है कि जो काम करने से वो किसी दूसरे की मदद कर पाती हैं, उसकी हेल्प कर पाती हैं, वो इनके लिए हैप्पीनेस है. और कोई? हर किसी के पास कोई ना कोई डेफिनेशन है. और पहले ही बता दूं, हैप्पीनेस की कोई भी थ्योरेटिकल मतलब बुकिश डेफिनेशन अभी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, तो आप सब बता सकते हैं कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, बस आप बताना चाहें तो हमारे लिए हैप्पीनेस हो जाएगी, हमारे कॉलेज के फैकल्टी के लिए हैप्पीनेस हो जाएगी, थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी. That's nice ma'am. और कोई? फैकल्टी, स्टूडेंट्स, एवरीवन. yes please. मेरे लिए हैप्पीनेस है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो दूसरों की हैप्पीनेस देखकर भी स्टूडेंट्स काम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हैप्पीनेस है. वेरी गुड. और कोई?
कोई और ज़्यादा नहीं, हाँ प्लीज़ 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 खड़े हो जाइए। गुड गुड। आपका? सॉरी मैं नहीं सुन पाई। घूमना अच्छा लगता है, घूमना आपके लिए हैप्पीनेस है। और कोई? दोस्तों के साथ चिल करना, अपने मनपसंद गाने पे डांस करना, बिल्कुल बहुत सारी बातें करना। बिल्कुल ना, बिल्कुल। हाँ बच्चे। मैम मेरे लिए हैप्पीनेस है हर छोटे बड़े मोमेंट्स को एंजॉय करना और उनको जीना। अच्छा, कैसे एंजॉय करते हैं? नहीं कैसे फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ उस पर्टिकुलर टाइम को अपने अंदर आंखों में बसा लेना, ये मेरे लिए हैप्पीनेस। गुड। आंखों में या कैमरे में? आंखों में बसा लेना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई? हाँ मैम सबसे बेसिक हैप्पीनेस ये है कि घर जाकर अपना फेवरेट खाना अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ। बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज़ आपके दिन भर की एक्टिविटी में हो सकती है जो आपको खुशी दे सकता है। बहुत अच्छा उसको देख के, जैसे घर जा रहे रास्ते में सोच रहे आज ये वाला खाना बना होगा कि नहीं, अगर वो दिख जाता है आप बहुत खुश होते। यकीन मानिए बहुत से बड़ी बड़ी तकलीफ आपके सामने, लेकिन अगर मान लो आपको दाल चावल पसंद हो, जाते ही सामने मिल जाए, हाँ ये बचा है, किसी ने खा नहीं लिया या आज कुछ मेन्यू बदल नहीं गया, तो आपको उससे भी खुशी मिल सकती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई फीलिंग, कोई घटना जो रूटीन में आपके चल रहा हो, उनमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आपके चेहरे पे स्माइल दे देती होंगी या आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दे। सेटिस्फैक्शन। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब शायद बहुत लोगों का मन हो रहा होगा ये बताने का कि हैप्पीनेस, हमारे लिए हैप्पीनेस क्या है। तो ऐसे अगर आप डिफाइन करेंगे तो जब हम लोग साइकोलॉजी की नज़र से आते हैं, अब जब थोड़ा सा हम एकेडमिक्स पे आते हैं, तो साइकोलॉजी का काम है कि ह्यूमन बिहेवियर को कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने का। तो साइकोलॉजी में बहुत बेचारा मेहनत किया कि कैसे करें कि हम हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करें, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, जब शुरुआत होती है, और आपने भी जब साइकोलॉजी शब्द सुना होगा तो एक मिथ के साथ कुछ ऐसे शब्द जो कि हमें शायद सुनना अच्छा नहीं लगता है, और जो कि अगर हम टीचर्स की बात करें तो अगर साइकोलॉजी वाले कभी कॉपी चेक करें तो उन्हें कॉपियों में भी वो लाइन, वो डेफिनेशन मिल जाती है कि मनोविज्ञान क्या है। तो अफसोस के साथ मुझे एक बार मिला था कि उसमें उस कॉपी में शायद जितने पेजेस थे उन पेजेस में 60% वो टर्म यूज़ किया गया था, मनोविज्ञान पागलों का विज्ञान है। इट इज़ अ मिथ। मिथ मतलब जो कि सच नहीं है, ठीक है। तो इस मिथ को, क्योंकि ट्रेडिशनल साइकोलॉजी करती क्या थी, वो फोकस करती थी नेगेटिव बिहेवियर्स को, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में जो चीज़ गड़बड़ हो गई है, गलत हो गया, हम दुखी हैं, हम सैड हैं, हम एंग्सियस हैं, हम एंग्री हैं, तो उनको ठीक करने पे जोर ज़्यादा दिया जाता था कि हम इनको ठीक कर लेंगे, हम इनको सुधार लेंगे। तो एक टाइम आया, पॉजिटिव साइकोलॉजी सामने आई, उसने कहा कि आप हमेशा इंसानों को इस तरह से क्यों देखते हैं कि इसके अंदर ये कमी होगी और हमें सुधारना है। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये देखना है, जब ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव सामने, मानवतावादी, आप उसे उपागम कहें या सिद्धांत कहें, नज़रिया कहें, लेंस कहें, सामने आया, तो उन्होंने कहा कि हम इंसानों में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जिसको अगर हम उपयोग करें, चैनलाइज करें या समझाने की कोशिश करें, लोगों को दिखाने की कोशिश करें, तो हम अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ दे सकते हैं, डेवलपमेंट दे सकते हैं। सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं करते, डेवलपमेंट इज लाइक विकास, मतलब आप होलिस्टिक तरीके से, कि आप अपने स्कूल में भी आके खुश रहते हैं, आप अपने घर पे भी आके खुश रहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के पास भी खुशी का मौका ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं कि घर जाने पर अरे वहाँ मन नहीं कर रहा है, घर नहीं जाएंगे, बहुत ही काम कराएंगे, मम्मी या तो डांटेंगी या तो पेरेंट्स डांटेंगे, कोई कुछ पूछ लेगा कि क्या पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, तो क्या हुआ, कैसे किया। तो इस तरह अगर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें तो वो ये सोचेगा कि नहीं, कोई ना कोई तो ऐसा मौका होगा कि आपको वहाँ भी जाके अच्छा लगने का ऑप्शन हो सकता है, बस कोशिश ये करनी है कि कैसे हम वो ऑप्शन ढूंढें। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी अप्रोच को जोड़ा गया है, हैप्पीनेस थ्रू ह्यूमर, अ पॉजिटिव साइकोलॉजी अप्रोच। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जब स्ट्रीम में आया, जब सामने आया, उस पर काम होना शुरू किया, तो उसने ह्यूमन स्ट्रेंथ, हम इंसानों के अंदर कितनी ताकतें हैं, कौन कौन से वर्च्यूज़ हैं, गुण अच्छे, जिनको कि हम फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस सिंपली एक स्टेट है, एक अवस्था है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से जो आपको खुशी दे रही हो, खुशी की फीलिंग आ रही हो आपके अंदर, आपको उस चीज़ को करके, उस चीज़ को सुन के, उस चीज़ को मतलब आप कुछ खा भी रहे हैं, उससे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप आँख बंद करके एकदम स्माइल करके खूब खुश हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे एक्सपीरियंसेस आपकी हैप्पीनेस है, और इसीलिए हैप्पीनेस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहा जाता है। एक ऐसा टर्म, अब सब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव वर्ड का मतलब ये है, एक बच्चे के लिए मान लीजिए आज ये प्रोग्राम हुआ, ठीक है। किसी के लिए ये था कि चलो हमें स्टैंड अप कॉमेडी देखने को मिलेगी, कुछ बातें सुनने को उसको खुशी मिली, ठीक है। दूसरे ने कहा नहीं हमारा तो टाइम चला गया ना, हमें नहीं अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस एक है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। दूसरा ये कह रहा है कि आज घर पे जाके ये फंक्शन है, हम उसको अटेंड करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हो सकता है उसी घर का मेंबर, आपका भाई बहन पेरेंट्स, जिसको वो फंक्शन अटेंड करने में खुशी ना मिल रही हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हैप्पीनेस क्योंकि सब्जेक्टिव है, जो आपके लिए खुशी की चीज़ है दूसरे के लिए खुशी की चीज़ नहीं हो सकती, उसको नहीं अच्छा लग रहा हो। तो एक इंसान होने के नाते ह्यूमन वर्च्यू, ये भी जो हम साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इसको एम्फेसिस किया जाता है, स्पेशली इन काउंसलिंग, एम्पैथी। आप दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखना सीखिए, कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको आ ही जाएगा या आप उसमें मास्टरी कर लेंगे। हम सब कोशिश करते हैं, हम कोशिश में फेल भी होते हैं। जैसे अभी उस बच्चे ने कहा कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है कि मैं दूसरों कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरे खुश होते हैं, ठीक है। एक ने कहा कि पहले जिस बच्चे ने बोला था कि मैं किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, सबसे पहले जो बच्ची उठी थी मधु राइट, हाँ। कोई पर्टिकुलर काम आपके मतलब आप डांस करने से, उनको डांस करने से खुशी मिलती है, उनकी फ्रेंड को डांस करना नहीं पसंद है। अब वो सोचते हैं कि ये मेरे साथ तो खुश हो नहीं रही है, मैं डांस करने जा रही हूँ और ये मेरे साथ डांस करने क्यों नहीं आ रही, चलो तुम भी डांस करें। नहीं, यहीं पे अब पॉजिटिव साइकोलॉजी को देखें तो वो कैसे हैप्पीनेस के कॉम्पोनेंट्स या हैप्पीनेस को देखने की कोशिश करता है। तो उसके पास एक मॉडल है, उस मॉडल को परमा मॉडल कहा गया है, जिसमें PERMA 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनसे कि 5 शब्द वो निकलते हैं। वो क्या है? P फॉर पॉजिटिव इमोशंस। हैप्पीनेस मीन्स आप कुछ किसी न किसी पॉजिटिव इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जॉय, लाफ्टर, ग्रैटिट्यूड कि अरे मेरा ये काम हो गया, इनकी वजह से ये काम हो गया। दिस इज ऑल्सो हैप्पीनेस। सिर्फ हंसना ठहाके लगाना ही हैप्पीनेस की डेफिनेशन नहीं हो सकती है। दूसरा आता है एंगेजमेंट, E फॉर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको उसको करने में खुशी मिल रही है, ठीक है। तो तीसरा आता है R फॉर रिलेशनशिप्स, मतलब आपको पसंद है लोगों से कनेक्टिविटी रखना। अब ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हर कोई 10-10 दोस्त बनाता फिरे और हर किसी के साथ मुस्कुराता फिरे, ठीक है। तो जिनको अकेले रहना पसंद है, जो कम दोस्तों के साथ कम, वो गलत नहीं है, वो भी खुश हैं अपने उस जिंदगी के साथ, उन्हें खुश रहने दें बिना किसी जजमेंट के कि अरे ये तो उठते बैठते ही नहीं, तो क्या बिगाड़ रहे हैं अगर नहीं उठ बैठ रहे हैं, तो किसी के लिए कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इफ सबसे पहला जो बाउंड्री आता है हम ह्यूमन बिहेवियर में, हम सब एक दूसरे से अलग हैं पर कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जिससे क्योंकि फिर तो साइकोलॉजी बनती ही नहीं ना। अगर हम कहीं भी किसी कॉमन ग्राउंड पे नहीं आते तो साइंस तो फेल हो जाता। वैसे कहता भाई इतनी पॉपुलेशन है, कितने ह्यूमंस को स्टडी करोगे किसी थ्योरी को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि थ्योरी बिल्ड होगी, हमें उसे अप्लाई करना होगा कि अरे ऐसा ऐसा करो तो ऐसा होगा। तो कॉमन ग्राउंड भी है पर डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, और उन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो रिलेशनशिप, कनेक्शंस मतलब आपके वो कनेक्शन जिनसे आपको खुशी मिलती है। ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे आपको लगता है कि मैं दूर रहूं, तो दूरी थोड़ा बना लेना इतना खराब नहीं है।
हाँ, ये भी अगर मतलब आप सोचें कि अच्छा चलो अब इससे हमेशा के लिए दूर हो जाए तो भी तकलीफ है, तो थोड़ा रुक जाओ, रिकंसीडर करो, टेक अ पॉज, रीथिंक एंड देन एक्ट। फिर आपका एम, परमा में एम अल्फाबेट, वो किसके लिए स्टैंड करता है? इट्स मीनिंग। एंगेजमेंट के लिए जो मैंने कहा था कि आप जो काम करते, कोई भी चीज़ करते हैं, उस करने को आपको खुशी मिलती है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है मीनिंग। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में मीनिंग सर्च करना, मतलब ये चीज़ जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब आप लोग को यहाँ बुलाया जा रहा होगा, क्यों बुला रहे हैं, किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं, हमें क्यों ऑडिटोरियम में भेजा जा रहा है। कितने लोगों के पास आंसर है कि उन्हें पता था ये क्या होने वाला है, और ये जो समय इतना आपका जाएगा, आप किसी एकेडमिक मतलब अपने सिलेबस का जुड़ा हुआ चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा है क्या? नहीं। तो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं, तो आपकी नज़र में ये क्या चीज़ है कि हमें यहाँ बिठाया गया है तो इससे क्या होगा। जैसे वो एंटर कर रही हैं ये सोचते हुए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और मैं जाऊँ तो कहाँ बैठूँ, ऐसी सहेलियाँ मिल जाए या फिर किसी तरह से मौके से हमें बाहर जाने दिया जाए। ये यहाँ बैठी सारी फैकल्टी इस अनुभव के साथ एकदम मैच्योर हो चुकी, बच्चों हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है अब। तो आप लोग बता सकते हैं, अच्छा चलो स्टार्टिंग में मीनिंगफुल नहीं लगा होगा, क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कि क्या बिठा दिया गया, क्योंकि सभी बच्चे शायद साइकोलॉजी के ना हो। यहाँ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं जिनका साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। अफसोस कि सबसे ज़्यादा मतलब उसे कहना कि ग्लैमर वाला ये सब्जेक्ट है, सुनने में बड़ा ग्लैमरस लगता है। आप टीवी में, आप वैसे मूवीज़ में या कहीं चलते, जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि कैसे मैम अच्छा लग रहा था, अच्छा अच्छा लगने के बाद क्यों लिया ये तो बताओ, क्योंकि जब आप असली में अंदर आते हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा, अब इसमें स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। तब हमने कहा ये ग्लैमरस था, क्योंकि जितने साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर दिखते हैं वो बड़े वेल मेंटेन, उनका आउटफिट बहुत अच्छा, तो एक अच्छा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। पर ये सब्जेक्ट क्या देता है, ये क्वेश्चन का आंसर तो था नहीं। फिर आप जब आप अंदर आ गए हैं हॉल के, तब आप बताइए कि आपको कोई मीनिंग समझ में आ रही है इस सेमिनार का, इस पूरे प्रोग्राम का। जब अभी और बच्चों ने बोला होगा कि व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर देम, हर किसी ने सोचा होगा, भले वो आंसर ना दे रहा, लेकिन सबके अंदर एक एक आंसर आ गया होगा कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है। ऐसा है, सबके अंदर एक थॉट तुरंत लिंक किया होगा कि मेरे लिए खुशी का मतलब ये है। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे लिए खुशी खाना है, मतलब वाकई ज़िंदगी, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, आप जिनसे भी कहेंगे तो ममता के लिए खुशी की चीज़ कुछ भी खाने को दे दो और स्ट्रेस खत्म। मतलब मैं स्ट्रेस नहीं ले आओ कुछ खाते हैं, चलो सब हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। हमारे कॉलेज में कल एनुअल फंक्शन है, तो मैं इसी मोटो के साथ अपने स्टूडेंट्स को भी पकड़ के रखती हूँ, जिंदा रहो, खाना मैं खिलाऊंगी, मेरे साथ रहो, मेरा साथ दो, भले मैं काम ना कराऊँ, लेकिन मेरे सामने रहोगे तो मेरे अंदर हिम्मत रहेगी कि मैं ये काम कर ले जाऊंगी, और जब वो काम मुझे ज़रूरत हो कि मेरे बच्चे साथ, बस बच्चे भूखे ना हो। व्हाट आई फील, मतलब ये मेरा पर्सनल है। हो सकता है सामने वाले को भूखे रहने में अच्छा लगता हो, उसको खाना नहीं खाना पसंद है, लेकिन मेरा ये था कि बच्चों भूखा नहीं रहना, बाकी तुम मेरे साथ टिके रहो पूरे दिन कॉलेज में। तो मेरे लिए खाना दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब कभी भी किसी भी तरह के खाने को मैंने इवैल्यूएट नहीं किया है अपनी ज़िंदगी में। किसी ने अच्छा बनाया, मतलब मेरे लिए तो अच्छा खराब की डेफिनेशन है, खाना इज़ अच्छा। किसी ने जो बना के दे दिया, मुझे ये लगता है कि जो बना रहा होगा बहुत मेहनत कर रहा है। व्हाट आई फील कि खाना बनाना इज़ मतलब एक बहुत मेहनत की चीज़ है, जिसमें अगर बन जाए, चलो किसी ने बड़ी मेहनत से बना दी और हम खाते वक्त उसमें कमी निकाल दें, तो मुझे बहुत अफसोस हो जाता है उस टाइम पर कि मिल गया है, ये बहुत अच्छी बात है, खा लेते, भूखे रहने से तो बेटर है। सो ऐसे ही हर इंडिविजुअल की अलग अलग चीज़ें हैं, वो प्रायोरिटी आ जाती है, ठीक है। जब आप स्ट्रेस के टाइम पे आते हैं, जब आप तनाव, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की बहुत बड़े तनाव, वो हमारे लिए बड़ा तनाव है और उसको हम छोटा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरे ने कह दिया। ये कौन सी टेंशन वाली चीज़ है, इसके लिए कौन टेंशन लेता, हम लेते हैं। हमारे लिए वो टेंशन की चीज़ है। आपके कहने से वो टेंशन की चीज़ कम नहीं हो जाएगी, हो सकता है आपके लिए ना हो,
ठीक है। तो मीनिंग ढूंढना, आप जब इस ऑडिटोरियम में बैठ गए हैं, जब इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, देन यू विल रीथिंक, रीफ्रेम योर थॉट्स। आप अपने जो विचार चल रहे होंगे पहले जो थे उसको रीफ्रेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब ये कोशिश करेंगे तो रीफ्रेमिंग आपको किसी न किसी मीनिंगफुलनेस की तरफ ले जाएगी कि क्यों हम यहाँ हैं, क्यों हमें ये चीज़ करनी है। फिर आता है ए, परमा मॉडल में ए, अल्फाबेट ए, जो कि स्टैंड करता है अचीवमेंट के लिए, कि आपके जीवन में उपलब्धि भी आपको खुशी दे सकती है। उपलब्धि शब्द जानते हैं, अचीवमेंट वर्ड सुना है सबने? हाथ उठा दो जल्दी से। अचीवमेंट क्या होता है बताओ? आपके लिए अचीवमेंट क्या होगा? मतलब वो अचीवमेंट जिससे आपको खुशी मिलेगी। हाँ प्लीज। मैं भी। So if I am able to speak even once, तो वो मेरे achievement है। Anything जो कि मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर मैं बोलूँ, जो भी लिमिट्स मेरी अगर मैं उसको एक स्टेप भी उसके आगे रख पा रही हूँ, so that's my achievement। Exactly sir, thank you very much। आपका नाम बेटा? मैं अनुश्री त्रिपाठी। सॉरी? अनुश्री त्रिपाठी। अनुश्री त्रिपाठी। तो इन्होंने, मैं जो बात कहने जा रही थी शायद उन्होंने अपनी बात कह दी। अचीवमेंट वर्ड बहुत बड़ा टर्म हो जाता है आजकल, वैसे भी मतलब हम लोग हर जगह कुछ टारगेट ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन वो बड़ी चीज़ सुनने में तो IAS PCS बड़े रैंक बड़ी जॉब बहुत अच्छी लगती हैं, पर नीचे का जो स्टेप वाइज गोल है वो हम छोड़ देते हैं कि हमें कॉलेज भी आना होता है, हमें क्लासेस भी अटेंड करनी होती हैं, हमें प्रोग्राम्स भी अटेंड करने, हमें अपने टीचर के साथ रहना भी है। सिर्फ वो क्लास के 45 या 50 मिनट्स या 1 आवर ही नहीं, हमें जब ज़रूरत हो, जब हमें प्रश्न हो या जब टीचर को हमें ज़रूरत हो कि आओ हम लोग, मेरे पास ये थोड़ा एक्स्ट्रा समय है, अगर आप समय दे सकें, टीचर्स आपसे ज़रूर ये बात कहते होंगे, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर स्टेप्स हैं हमें इन पे भी ध्यान देना होता है। तो अचीवमेंट जो है, अब हैप्पीनेस से कैसे अटैच्ड है, आप एक तो गोल्स जो हैं, लक्ष्य जो हैं रियलिस्टिक रखें। ये चीज़ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो उन गोल्स को छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। जब कभी ये आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि लगेगा अब हम ये गोल अचीव कर सकते हैं, तभी हम वो चीज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसलिए अपने एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आपके सामने रख सकती हूँ कि हो सकता है उस रास्ते पे आप नहीं चले हों, लेकिन मैं उस रास्ते पे गई हूँ और कभी न कभी उससे सिमिलर रास्ते आप भी देखे होंगे। मेरा नाम लिखा है मिसेस ममता मुजाने, दैट मीन्स आई एम नॉट अ PhD होल्डर। मैं अभी पिछले साल एनरोल हुई हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जिस प्रोफेशन में हम हैं, PhD की डिग्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रमोशन के लिए, और उससे जुड़ा हुआ क्या होता है हमारे लिए, फाइनेंशियल गेन, ठीक है, चलता है। नौकरी को हुए 11 साल, मैं ऑलरेडी उसके पहले PhD में एनरोल थी। फिर जब जॉब लगी तो ऐसे कुछ हालात हुए कि मुझे लगा कि शायद अब PhD उस ऑनेस्टी के साथ हम नहीं कर पाएंगे, तो हमने उसको ड्रॉप करने का सोचा। बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, ठीक है। उस टाइम के बाद फिर लगा कि अब अगर मैं उसी टाइम पे ये सोच लेती कि चलो अच्छा अभी नहीं, अरे बाकी सब लोग तो डॉक्टर लगा रहे हैं, उनके प्रमोशन टाइम से हो जाएंगे, मेरा क्या होगा, मुझे उससे होती स्ट्रेस। और मुझे उस टाइम पे जब मैं जॉब में आई थी तो भी ये टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे अपनी PhD कंप्लीट करूं, क्योंकि मेरा डेटा कलेक्शन के लिए जो सैंपल था वो डिप्रेशन के पेशेंट्स। अब ऐसे तो नहीं उनको पकड़ के अरे बैठो बैठो तुम मेरा फॉर्म भर दो और जाओ, हम ऐसे नहीं कर सकते, ना ही हम फर्जी डेटा बना सकते थे। तो अब टेंशन बहुत हो रही थी, मुझे हो रही थी स्ट्रेस उस चीज़ से कि ये तो मतलब ना मैं अपनी एकेडमिक्स को ध्यान से दे पा रही, क्योंकि मैं नई नौकरी में आई थी, मुझे तो लग रहा था मैं 100% अपने स्टूडेंट्स के लिए दूँ। तो मैंने उसी टाइम वो डिसीजन लिया कि मैं इसको ड्रॉप करूँ। अगर मैं इस समय ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, आगे के 2 साल भी मैं नहीं कर सकती हूँ, तो समय रहते, क्योंकि ये मुझे टेंशन दे रहा है, और उतना टेंशन जो कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए उससे ना मैं खुश रह पा रही हूँ, ना मेरे साथ जो लोग हैं वो खुश रह पाएंगे, तो बेटर टू लीव इट। फिर आगे मौके आए, बरेली आए, हम मऊ जैसे ज़िले में थे, फिर वहाँ से बरेली आए, अब लगा अब यहाँ करते हैं। फिर कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ सामने आई कि लगा नहीं अभी थोड़ा रुक जाते हैं, कि अगर दोनों जिम्मेदारियाँ क्लैश कर जाएंगी, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लैश कर जाएंगी, तो फिर मुझे टेंशन हुई।
जब मैं यहाँ आई वो जिम्मेदारियाँ मेरी ऐसी हुई कि कम हो गई, तो मुझे लगा नहीं, अब ये वक्त है कि मैं उसको टाइम दे सकती हूँ, जिस चीज़ को जितना टाइम मुझे देना चाहिए था। तो मैं फिर स्टूडेंट बन गई और वही स्टूडेंट वाली फीलिंग के साथ मैं सामने आई हूँ। हर वक्त वो डर लगना कि अब एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पे ये नहीं था कि एडमिशन हो जाए और डिग्री हाथ में आ जाए। आज तो मैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर ले जाऊँ, इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कि अरे आप तो पढ़ाती हैं और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगी। मतलब मेरा फर्स्ट गोल ये था, ये हो जाए फिर देखेंगे। अच्छा, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, चलो जिन भी हालातों से हुआ, उसके बाद उसमें भी जब आप आ गए, तो अगर वहाँ हम हट जाते तो एक होता कि जस्टिफिकेशन हो जाता, अरे हुआ ही नहीं तो आगे हम कैसे एडमिशन लें, करना ही नहीं है, वो भी हो गया। अब अगला कि अच्छा अब हमें टॉपिक सिलेक्शन, अब उस युद्ध में हम कूद गए। अभी भी मेरा डिग्री वाला प्राइमरी गोल नहीं है, क्योंकि उसको मैं ध्यान ले लूँगी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फिर मैं परेशान हूँ। अभी है कि जो उस गोल के लिए छोटे स्टेप्स हैं वहाँ तक मैं आसानी से पहुँच जाऊँ। ऐसे ही जब आपका है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो सीधे कॉलेज टॉप करना या नौकरी पाना शुड नॉट बी द प्राइमरी गोल। वो परेशान करेगा, क्योंकि उसके पहले के जो गोल होंगे उनको अगर आप छोटे अचीवमेंट्स आप लेंगे तो वो आपको खुशी देगी, और जब खुशी आएगा, जब आप खुश होते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रेंथ आती है अगली लड़ाई लड़ने की, कि ये तो नाव निकल गई, अब अगली नाव पे पैर रखना है। एक साथ दो नाव पे आप जब सवार हो जाते हैं, क्योंकि आज हम सभी उस तरह के जनरेशन या इस लखनऊ में अगर हम देखें तो बच्चा एक साथ तो यहाँ पे स्कूल में हमारे कॉलेज में डिग्री ले रहा है, साथ में कहीं कोई और कोचिंग कर रहा होगा, कंप्यूटर क्लासेस कर रहा होगा, ट्यूशन ले रहा होगा, मल्टीपल रोल्स में इन्वॉल्व है। कुछ को पता होगा कि मेरे पास ये मल्टीपल रोल निभाने के लिए स्ट्रेंथ है, कुछ को नहीं, वो बोझ तले, उनको ये समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, क्योंकि और लोग कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो तो आप जब बहुत सारे नाव पे सवार हो जाएंगे तो वो अचीवमेंट्स ना, तो आप इसमें प्रॉपर अचीवमेंट आप डिफाइन कर पाएंगे कि मुझे इसमें क्या मिला, इस डिग्री में बीए करते हुए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने पे मुझे क्या मिला, ना ही आप अपने हायर लेवल के गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने गोल्स सेट करना और छोटे स्टेप के गोल, छोटे छोटे गोल, दिन भर का, आज ये टास्क मिला है, आज ये टास्क हम कंप्लीट कर लें। मेरा कल का दिन भर का गोल क्या था, मैं जब तक अपने कॉलेज में थी, हमारे यहाँ कल एनुअल फंक्शन है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई, 4 बजे तक मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से प्राइमरी फोकस किया कि मुझे ये चीज़, उसकी सारी तैयारियाँ करनी। जैसे ही मैं घर पहुँची, मैंने अपने फैमिली से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, आज मुझे और जिम्मेदारियों से आप मुक्त रखिए, क्योंकि मुझे यहाँ की भी जिम्मेदारी उठानी। मुझे बात कहनी तो ऐसे ही नहीं हम उठेंगे, हम लोग बस ब्रह्मा जी हमारे अंदर, सरस्वती जी हमारे अंदर, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम भी तैयारी करते हैं। हम सबको तैयारी की ज़रूरत होती है कि हम कौन सी बात बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे। तो इस बिना प्रिपरेशन के अगर आप सोचें कि कोई भी चीज़ कर ले जाएं तो शायद मुश्किल होगा। तो प्रिपरेशन करना आपकी कमजोरी नहीं है। हमें जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारी प्रोफेसर पढ़ाती थी तो हम बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक्स वो दे देती थी कि आप लोग भी क्लास में बोलिए। वो नहीं उसको पढ़ाती थी, वो हम लोग को देते थे कि यू विल टीच इन द क्लास। तो हम लोग वो छोटे छोटे सेक्शन तैयार करते थे मास्टर्स जब एमए कर रहे थे। तो नेक्स्ट ईयर जब हम एमए मतलब मैं एमए फाइनल में आई तो उन्होंने मुझे बुलाया, शी वॉज अ प्रोफेसर, बुलाया कि ममता मुझे तुमने पिछले साल जो प्रेजेंट किया था ना वो टॉपिक पढ़ा दो, क्योंकि वो शायद कहीं और से हम ढूंढ के ले आए थे उसके पे। तो एक बार डरे कि प्रोफेसर बुलाने, मतलब वो चेक कर रही होंगी ममता को आता है कि नहीं, पर वहाँ वो मेरा टेस्ट नहीं ले रही थी। शी वॉज हम्बली, मतलब वो बस एक हम्बल उनका वो था जेस्चर कि ये चीज़ मैंने नहीं देखी है, ममता ने ये चीज़ देखी है, तो मैं ममता से वो चीज़ जान सकती हूँ। वो एक मोमेंट था जब मैंने ये, मतलब खुशी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे सोनल ने बोला था कि मैम आपको एक गेस्ट के तौर पे, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है कि हाँ हम मतलब वो इंसान इसमें शर्मिंदा नहीं है कि अरे हम अपने स्टूडेंट से सीख रहे हैं या उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उस मोमेंट ने मुझे वो जो लर्निंग दी है कि हम कभी भी किसी से भी सीख सकते हैं, पर हमें तैयार होके जाना जरूर। तैयार इन द सेंस आप मेंटली प्रिपेयर हो जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो आप जिस टास्क को करने जा रहे हैं।
अब यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी किस तरह से हैप्पीनेस को डील करता है या समझाने की कोशिश करता है वो हम समझ गए हैं। अब जो हमारा मेन है, जो कि सोनल और गगन और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने चुना हुआ है, ह्यूमर। इसको हिंदी में आप हास्य कहिए, मजाक भी आपको, मतलब मजाक शब्द लेकिन उसका सही अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, हास्य, ठीक है। तो ह्यूमर जो है वो जोकिंग और फन उसका हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उनसे अलग कॉन्सेप्ट। पर क्या है, जब आप हंसते हैं, कोई फनी चीज़ हो गई, माहौल बहुत टेंस था लेकिन उसमें कुछ किसी ने कुछ ऐसा जोक किया, कोई ऐसी बात कह दी, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपको हंसी आ गया। आप हंसना नहीं चाह रहे थे, आप तैयार नहीं थे, लेकिन आपको हंसी आ गई। तो ह्यूमर कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ह्यूमर जो है वो हैप्पीनेस का एक टूल है, एक फ्री टूल है आपके पास, एक थेरेपी का टूल है कि आप अपने मुश्किल वक्त में भी अपने आप को, अपने मन को, अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ह्यूमर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एक मानसिक शक्ति, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है ह्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत टेंशन में, बहुत स्ट्रेस में हैं कि क्या करें, आज एग्ज़ाम है। अब एक आप ये सोच सकते हैं कि अरे ख़राब हो जाएगा एग्ज़ाम, क्या करें, नंबर कम आ जाएंगे, बहुत डांट पड़ेगी। एक तरीका ये है कि आप उसको इवैल्यूएट करें, उस सिचुएशन को, और फिर परेशान हो। दूसरा तरीका ये है, देखते हैं जो होगा। जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो बहुत, मतलब मेरे जो साथ में पढ़ने वाले होते थे बहुत टेंशन में रहते थे, हमें भी टेंशन होती, लेकिन वो घर में हम छोड़ के आ जाते थे। फिर वहाँ बहुत हंसते थे, बिना किसी बात के ही हंसते थे कि तुम हंस क्यों रही, तुम्हें टेंशन क्यों नहीं। हमने कहा अब तो मेरे हाथ में है नहीं जो होगा अंदर। जब एग्जाम दे के निकलते थे तो भी पूछते थे कि कैसा हुआ, क्या हुआ, उसकी क्या टेंशन लेनी है, जो हो गया सो हो गया, देखा जाएगा जब होगा, जो रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है मैं अंदर डरी हुई नहीं हूँ कि क्या होगा, कैसा एग्जाम आ जाएगा, लेकिन ठीक है, जब अब तो हम एग्जाम हॉल के बाहर है ना, अब हमारे हाथ में थोड़ी कि हम ढेर सारी बुक्स पढ़ लें और बहुत सारे रीडिंग मटेरियल कर लें। अब तो जो आ गया अंदर, अब उसको स्टोर कर लें और उसको हम रिप्रोड्यूस कर सके वहाँ पे, इतना ही कर सकते हैं। तो सिचुएशन एक है, स्ट्रेस में दूसरा भी इंसान है, लेकिन हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उस माहौल को कैसे लाइट कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है और हम सभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ ही लोग फनी होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। हम सबके अंदर अलग अलग लेवल का ह्यूमर होता है, बस हम कहीं डरते हैं कि ये चीज़ करें ना करें, हम हंस देंगे तो लोग कहेंगे करें ये सीरियस ही नहीं है, पेरेंट्स कहेंगे तुम्हें हंसी आ रही है, एग्जाम है तुम्हारा, मजाक सोच रहा है। ऐसे इवैल्यूएशंस हो सकते हैं, बस स्टिल हो सकता है उनके सामने तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, पर अलग जाके हंस लो, या कोई फनी चीज़ देख लो, कोई फनी किसी अपने फ्रेंड से बात कर लो जिससे कि लग रहा है उससे बात करने को कुछ तो हंसी वाली चीज़ बोली देगी। हम लोग के पास ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स होते, कुछ होते थे बड़े स्ट्रेस रहते थे, ये पढ़ा कि नहीं, तो हम लोग को डाउट होता है जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं कि ये चीज़ कैसे क्लियर करें। तो किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा लिया, मैंने उससे पूछा कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़नी है, मैं नहीं थी उस दिन क्लास में, तो प्लीज़ बता दो। तो उसका दूसरा क्वेश्चन ये था, तुमने कितना पढ़ लिया? मैंने वाकई कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम तक। और अब वो शुरू हो गया, मतलब उसको ये लगा कि शायद इसने बहुत पढ़ लिया, ये एक चीज़ बचा हुआ है, अगर इसने पढ़ लिया तो इसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। वो परेशान उधर, मैंने कहा अरे ये तो मैंने इसी को परेशानी दे दी, वो मुझे उल्टे परेशानी दे रही है। मैंने कहा तुम फ़ोन रखो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ये चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं हम समझेंगे। बोली नहीं तुम बताओ, तुम कसम खाओ तुमने क्या। मैंने कहा अरे ये तो ज़्यादा ही परेशान है इस चीज़ को लेके कि दूसरा कितना वो कर रहा है। मेरी परेशानी ये थी कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उसने शायद क्लास में ली थी, प्लीज़ ये बता दो कि क्या चीज़ उसमें बताई गई थी, तो मैं जिस चीज़ को पढ़ने चाहूँ मैं ओरिएंटेड हूँ, ये नहीं कि मैं 10 पेजेस की चीज़ें पढ़ रही हूँ, पता चल रहा है वो उससे रिलेटेड ही ना। तो मैंने फ़ोन रख दिया कि नहीं आगे बात करना सेफ नहीं है, अब जो हम कर पाएंगे हम वो करेंगे। तो ये इंसिडेंट्स क्योंकि आप उस फेज से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं उस समय को उदाहरण ढूंढ रही हूँ कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम टाइम में भी हंसते थे या खुश हो लेते थे, अपने स्ट्रेस को कम कर लेते। जैसे किसी भी टाइम मेरे पेरेंट्स ने इस बात में ज़रूर सपोर्ट किया कि जब मन हो जो मन हो वो खाओ, लेकिन तुम खुश रहो। हाई स्कूल में मैथ का पेपर था, बहुत खूब रो रही थी मैं, बैठ के नहीं होगा, पास नहीं होंगे, हम नहीं पास होंगे। तो मेरे फादर जब घर आए तो बोले ठीक है फेल हो जाओगे फिर से पढ़ा लेंगे। मैं तुरंत खुश हो गई, बस ठीक है क्या टेंशन है। तो अब वहाँ पे क्यों मैं खुश हुई, क्यों मेरी स्ट्रेस कम हो गई? जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लाइक माई पेरेंट्स,
मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो वो मुझे कैसे देखते अगर मैं फेल हो जाती, तो मेरे लिए टेंशन, क्या सोचेंगे, क्या होगा, कैसे रिएक्ट। जब उन्होंने ही मुझे कंफर्ट कर दिया कि कोई बात नहीं है, तुम अगर फेल भी हो गए तो कोई परेशानी नहीं होगी, तो मेरे लिए दुनिया चाहे जितना मुझे इवैल्यूएट करे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। तो आपके पास भी कोई पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस होगा जो कि आपके स्ट्रेंथ में, आप में बिलीव करता होगा, भले दुनिया भर के लोग आप पे ना करते। तो आप ये जरूर रखें कि वो इंसान आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और इस इंसान को अपने साथ बना के रखें। तो आपका स्ट्रेस का आप उसके साथ हंस सकते हैं। आप हो सकता है हंसी मजाक में कभी कभी ह्यूमर में कुछ ऐसी बात कह दें जो कि अच्छा ना हो, लेकिन वो पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस जो होगा, जो आपके सबसे करीब होगा, तो वो उसका बुरा नहीं मानेगा। बाकी मान सकते क्योंकि शायद वो आपको ना समझ रहे हो, लेकिन में होते हैं, आपको हंसी आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको कुछ लगा कि अरे ये तो ऐसा था ही नहीं सिचुएशन, और ऐसा गिर पड़े, आप क्या करें, या तो बुरा माने, मेरे सर हटो गिर गए, यार देख लिया सबने, यार सोचे अरे ठीक है, थोड़े से हमसे हमारी धरती बहुत प्यार करने लगी, बुला लिया पास में, गिर गए। आपने उस सिचुएशन को रीइंटरप्रेट कर दिया, रीफ्रेम कर दिया। वो सिचुएशन जो आपके लिए एम्बैरेसिंग हो सकती थी, आपको शर्म आती है, आप उसको हंसी में लेके निकल गए। तो आप फिर उसको एक बैगेज की तरह, एक बोझ की तरह आप लाद के पूरे दिन नहीं टहलोगे कि अरे आज गिर गए थे इन्होंने देखा, अरे आज गिर गए थे इन्होंने देखा, अरे आज गिर गए। वो आपका ब्रेन तुरंत ही उसको आपके सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में डाल देगा कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, और जब आपने उसकी इंपॉर्टेंस कम कर दी तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके साथ ऑलरेडी कम हो गए। तो अब अगर हम साइंस की तरफ जाए तो ह्यूमर या हैप्पीनेस, क्योंकि ह्यूमर की वजह से आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, आप खुश होते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, तो आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो वो हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। कभी पढ़िएगा, गूगल करिएगा तो होगा। हमारी एक प्रोफेसर थी, वो कहते हैं बनाना इज अ हैप्पी फ्रूट, बनाना खाओ, हैप्पी डोपामाइन बढ़ाओ, ठीक है। तो वो क्या मतलब, वो हार्मोन्स जब आप खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो वो रिलीज होते हैं। तो उनके रिलीज होने से आपके अंदर, तो ये भी किया जाता है जब कभी आप किसी काउंसलिंग या साइकेट्रिस्ट से मिलें, कभी किसी पेशेंट से मिलें, तो उनको उन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए मेडिसिन भी दी जाती है, ताकि उनका मूड स्टेट, जो उनका मन है, मन की अवस्था है, वो एलिवेट हो जाए, अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है। आप जब खुश होते हैं तो आपका स्ट्रेस का जो हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, उसका रिलीज होना, मतलब वो बाहर निकलना ब्लॉक हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसको कि आप कार्टिसोल के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारी शारीरिक परेशानियां भी होती हैं। इफ यू आर इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लंबे समय से कुछ ऐसे हालात जिंदगी में होते हैं जिनसे हम नहीं निकल पाते हैं, और ये तय है कि वो आपको परेशान करेंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, ठीक है। फिर आप जब ह्यूमर की वजह से आप खुश होते हैं, अच्छा, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। जरा हंस के देखो, एक बार सब लोग हंस के देखो किसी भी बात पे, सोच लो कुछ भी। बच्चे हमारे सामने कंफर्टेबल रहे, हाँ बस इतने कंफर्टेबल न रहे, और मैडम बताइए घर में क्या चल रहा है, ये वाला नहीं चाहिए कंफर्ट। ये कंफर्ट चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट हमसे ये कह सके कि मैम आज ये प्रॉब्लम थी, क्या मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्या आप सुनेंगे। आपने कह दिया कि मैम हम एक लड़के से बात करते हैं और पेरेंट्स नहीं परेशान, वहीं पे शुरू हो गया पेरेंट्स वाली चीज़ लेके, अरे तुम तो बहुत गलत कर रही हो, क्यों ये सब करती हो। अब वहाँ पे अगर हम कहें तो हम टीचर्स या हम बड़े क्या समझे कि ठीक है, वो बच्चे के हिसाब से तो शायद वो सही कर रही है, लेकिन मुझे समझना होगा कि क्यों ऐसा कर रही है।
मैं अपने पर्सपेक्टिव को थोपूं कि तुम ये गलत कर रही हो, पहले मैं उसके पर्सपेक्टिव को तो समझ लूँ। तो ये जब कंफर्ट आ जाएगा कि अपनी बात आप बिना किसी संकोच के एक्सप्रेस कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को सोशल बाउंड्रीज हटा के, तो शायद आप हम टीचर से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे विदाउट डिसरिस्पेक्ट, बिना ही उस बाउंड्री को आप ब्रेक किए हुए कि जब बच्चियां कहने लगती हैं ना, अगर आप कभी, अब ऐसा तो नहीं हम रोज साड़ी पहन के जाते हैं, जब जाएंगे तो कुछ बच्चियां होती, मैडम आप बहुत अच्छी लग रही, जरा सेल्फी ले ले। मैंने कहा बाकी दिन हम नहीं अच्छे लगते हैं और दिन सेल्फी नहीं लेना होता है। तो मतलब दिस काइंड ऑफ दे थिंक कि इस अच्छा लगता है, हर किसी को प्रेज एप्रिसिएशन पसंद है, पर आपको उस एप्रिसिएशन में और भी चीज़ें जोड़नी होंगी, इंटरनल क्वालिटीज़ को भी जोड़नी होगी। ये तो एक एक्सटर्नल क्वालिटी है ना कि आज हम बहुत तैयार हो गए हैं, रोज़ शायद इतना वक्त नहीं मिलता हो, इतना ध्यान नहीं देते हो। तो जो इंटरनल क्वालिटी होगी कि वो टीचर आपके साथ एफर्ट लगा रहा है कि हमारा बच्चा एटलीस्ट हमारे सब्जेक्ट को समझ जाए, तो उस एफर्ट में भी आप साथ दें, तो वो टीचर भी आपके साथ हंसेगा। क्योंकि हम और सोनल इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते रहते हैं, जब हम लोग वाइवा लेते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि मैडम आप सारे आंसर दीजिए, हम बैठे हैं सुनने के लिए। तो मैं एक जगह गई थी प्रैक्टिकल लेने, तो वहाँ पे जब एक बच्चा प्रैक्टिकल का वाइवा दे के जा रहा होगा अंदर, तो जब दूसरा बच्चा आया, मैंने पूछा कि तुमने पूछा तो होगा ना कि अंदर क्या पूछा। जब हम लोग इंटरव्यूज देते तो जो पहले का कैंडिडेट क्या क्या पूछा गया था जरा बताना, तो डांट वाट तो ले रहे हैं, इंसल्ट तो नहीं कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे तो नहीं। आई वॉज लाइक दैट इन माई जॉब इंटरव्यू, मारेंगे तो नहीं ना अंदर नहीं मारेंगे नहीं, ऐसा नहीं है बिटिया। क्योंकि वहाँ पे जो बाहर गार्ड बैठे थे, मैं उनसे पूछ रही थी अंकल मारेंगे नहीं अंदर ना इंटरव्यू, अरे नहीं बिटिया नौकरी के लिए मारेंगे कैसे। मतलब मैं एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में बैठी इस तरह से नर्वसनेस में अपने इस तरह फालतू चीज़ें बकवास कर रही थी। तो ऐसे ही मैंने स्टूडेंट से पूछा तो होगा ही कि पहले के स्टूडेंट से क्या पूछा। हाँ मैम, तो मैंने कहा क्या बताया, तो बोले कोई टेंशन की बात नहीं है, जो नहीं आएगा मैम उसके आंसर दे देगी। क्योंकि जब बच्चों को क्वेश्चन कुछ नहीं है वो समझा पा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उसमें इनपुट दे देती थी कि ठीक है ऐसा भी शायद हो सकता है। तो उन्होंने उसको रिलैक्स कैसे किया कि रिलैक्स, तुम्हें नहीं आएगा मैडम आंसर दे देगी, तुम्हें कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं। उसने ये नहीं बताया कि किस एरिया से पूछ रही, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही, उसने क्या रिमार्क दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको नहीं है मैडम आंसर देती जाएंगी, आप परेशान ना हो। वो बच्चे बहुत ही रिलैक्स मूड से, हमने कहा इसलिए तुम लोग एकदम रिलैक्स हो गए कि हमें कुछ बताने की ज़रूरत अब नहीं है। तो ऐसा होता है, हो सकता है एज ए टीचर हमें वहाँ पे गुस्सा आए, हम उस सिचुएशन को एक गुस्से के रूप में भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि अरे ये क्या बच्चे हैं, क्यों नहीं बता रहे, ऐसे भी क्या बात होती है, ये कौन सी बात बता। तो हमें ही तो टेंशन होती, हम और गुस्सा करते, वो बच्चा और घबराता, जो उसको आता रहता वो भी वो भूल जाता। तो मैंने इसीलिए कहा कि कोई बात नहीं, बैठो, जो रिव्यू मिला है सही ही मिला है, हम लोग इसी के लिए यहाँ बैठे हैं, या आपको जो अभी तक नहीं आ रहा होगा वो हम सब बताते जाएंगे। तो कैसे परिस्थितियों को आप सीरियसनेस से थोड़े हल्के माहौल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यहीं पे ह्यूमर की इम्पोर्टेंस है, और ये इम्पोर्टेंट है। पर ऐसा नहीं कि हर समय हर वक्त उठते बैठते आप हर चीज़ को मजाक में लें, हर समय हंसते रहे कि अभी सीरियस टीचर आपको कोई सही बात मतलब सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है, आपके पेरेंट्स एक्सप्रेस कर रहे हो, और वहाँ पे आप तुरंत ही एक जोक माने रुकिए एक जोक सुन लीजिए फिर आप हमें डांटेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो कैपेबिलिटी है, ये हम लोग को धीरे धीरे अपने अंदर लानी होगी, आएगी। ऐसा नहीं कि हमने भी ऐसे एम्बैरेसिंग सीन नहीं किए होंगे कि जहाँ नहीं हंसना चाहिए तो वहाँ हंस दिया, फिर मुझे सीखने को मिला होगा नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसा मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। पर यू शुड ट्राई। आप उस इंसान की जो आपकी उस पोजीशन से ऊपर है, जो आपकी ह्यूमर को शायद अच्छे से ना ले, आपको पता है कि वो पॉजिटिवली नहीं लेगा, तो आप उस परिस्थिति से जैसे ही निकले, उस व्यक्ति से जैसे ही दूर जाएं, आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं किसी एक जोक से, किसी हल्के आप एक मतलब मेमोरी में जाके अपने कोई जो फनी चीज़ सोच के, आपके पास फ़ोन है, आप कुछ भी मजाकिया चीज़, हल्की चीज़, गाने सुन सकते हैं, देख सकते हैं जो कि आपके लिए ह्यूमरस हो। अब ह्यूमर एक कोपिंग स्ट्रैटेजी की है, ये जितनी बातें हैं वो कोपिंग स्ट्रैटेजी की तरफ ही जा रहा है। अगर आपने कोपिंग वर्ड सुना हो कि कैसे जब हम परेशान होते, जब हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, तो हम उन चैलेंजेस को कैसे डील करें, या तो हम
एक्टिवली डील कर सकते हैं कि ठीक है, अगर हमारा एग्ज़ाम आ गया है, हमसे ये टास्क दिया गया है जो कि हमारे सेट टाइम से ज़्यादा हमसे टाइम की उम्मीद कर रहा है, तो हम वो टाइम देंगे। ठीक है, आपने एक्टिवली उससे डील किया। दूसरा वो चैलेंज है, अब आप एक्टिवली उससे डील नहीं कर सकते, मजबूरी है कि आपको घर पे जाके समय नहीं मिलेगा कि आप अगले दिन का वो काम पूरा कर पाएँ, तो स्ट्रेस अंदर से तकलीफ हो रही होगी कि अरे क्या होगा, कल डांट पड़ेगी, कल ऐसा होगा, तो भूल जाए, डांटने दो, कोई बात नहीं, जितनी हिम्मत होगी उतना कर लेंगे, बाकी देखा जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप उस स्ट्रेस को लेकर तो आप प्रिपरेशन में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, बल्कि उस स्ट्रेसफुल थॉट को लेकर दिन भर दिमाग में बैठे रहेंगे। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम पीएचडी का जो एनरोलमेंट था जिसको मैंने ड्रॉप किया था, वो मेरी पीएचडी थी रूमिनेशन पे। रूमिनेशन वर्ड जो है कि आप किसी ओवर थिंकिंग शब्द, वो जो कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होता है, इतना हम रूमिनेशन वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, तो ओवर थिंकिंग, कोई भी एक थॉट आपके दिमाग में आ गया, आप चाहते हो उससे निकल जाए, लेकिन आप बार बार उसके उस ट्रैप में फंसते जाते हो। एक बार सोचा अच्छा सोचने से शायद हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा, मतलब हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली ये सोचता है, पर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं आते, हम उस ट्रैप में, उस साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये इसीलिए ह्यूमर यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन, ह्यूमर, ये जो हल्की सी हंसी, हल्की सी मुस्कुराहट, हल्का सा जोक, लाइट जोक, हेल्दी जोक, अगर उस समय आपके जीवन के उस साइकिल से, उस ट्रैप से आपको बचा सकता है तो ये अच्छी बात है। कभी आप बहुत परेशान होते, लग रहा है कि अभी कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता, एक ऐसा इंसान जिससे आप बात करके उस समय अपने मूड को हल्का कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। मतलब ये नहीं, टालिए नहीं उस चीज़ को कि ठीक है अरे चलो देखेंगे, अभी शायद कुछ काम हो जाए, बाद में उससे बात कर लें, बिल्कुल मत उस चीज़ को टालिए प्लीज़। कभी कभी वो आपको लगता है लेकिन वो थॉट आपके दिमाग से जाता नहीं है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाता है, और फिर उसका ट्रिगरिंग कोई मोमेंट आपको दिखा और वो फिर आप रिलैक्स होगा और फिर आप उस ट्रैप में फंसते जाएंगे। फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हम इंसानों के साथ है, हम सब के साथ है, ह्यूमर शुड हील नॉट हर्ट। आपका मजाक, आपका लाफ्टर, आपका जोक दूसरे के मूड को अच्छा करने में मदद करना चाहिए, उनको और तकलीफ ना दे, ये आपको ध्यान रहे। कुछ बाउंड्रीज भी हैं कि हर मजाक दूसरे को अच्छा लग जाए, ये सही नहीं है। तो आपको एक इंसान होने के नाते इस मैच्योरिटी को, इस इंटेलिजेंस को अपने अंदर लानी होगी कि हम कब, कहाँ, किसके साथ किस तरह का ह्यूमर, किस तरह का जोक, किस तरह की लाइटनिंग मूवमेंट्स रख सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। इट्स लास्ट। इसीलिए इंडिया में भी आप लोग पता नहीं, अब हम लोग तो बहुत पढ़ते थे, हमारी शायद फैकल्टी भी जानती, बीरबल की कहानियाँ और तेनालीरामा, इन सब के स्टोरीज में एक विट रहता था, एक ह्यूमर रहता था। वो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को किससे डील करते थे? मजाक से। मतलब राजा के सामने जो सर कलम कर देगा उसके सामने मजाक कर रहे थे, और वो राजा भी ये समझता था कि दिस इज़ अ हेल्दी वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम और स्ट्रेस। वो हंसी में ढह जाता था और उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को डील कर जाता, अपनी गलती या तो स्वीकार कर लेता तो बिना एम्बैरस हुए प्रजा के सामने। वो इस तरह से उन परिस्थिति, बीरबल चंद्र अकबर को तो इसी तरह से सलाह देते थे कि अकबर को समझ में आ जाता था कि ये हमसे गलती हुई है, पीछे हो लो, और प्रजा को पता नहीं चलता था कि हमारे राजा की यहाँ पे गलती है। तो ये जो हमारी इंडियन विजडम में ये ह्यूमर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। मतलब अगर हम उस प्रथा को देखें तो आप सब हंसना, मुस्कुराना, मतलब अभी जब नाम हंसी तभी मुझे याद आया था उस टाइम पे कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मैसेज बैकवर्ड टू ब्रेन जाता है। जब आप ऐसे करेंगे, फेस के मसल्स जो हैं वो एक मैसेज ब्रेन को देंगे कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू बी हैप्पी और इज हैप्पी। तो ब्रेन क्या करेगा, फिर उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हुए उस डायरेक्शन में हार्मोन्स को रिलीज करना या उस प्रोसेस को एक्टिव करना शुरू कर देगा। तो अगर थोड़े से नहीं अच्छा लग रहा है, ये इंसान कैसे करे, ऐसे मुंह बनाए कि कैसे मुंह बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बना दोगे, आप मुस्कुरा दोगे और आप खुद खुश हो जाओगे, सामने वाला भी आपके साथ थोड़ा खुश हो लेगा और इसमें कोई आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो वो गाना हमेशा याद रखिए, देवानंद का एक गाना था जो मैं शायद भूल रही हूँ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया,
डोंट टेक लाइफ टू मच सीरियसली कि आप भी उससे परेशान हो जाए। और सब लोग, बिकॉज देर आर हैप्पी फेसेस, आई एम सो हैप्पी, मतलब मैं ये अपने साथ ले जाऊंगी। एंड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और ऐसा प्लेटफॉर्म, थैंक यू प्रिंसिपल मैम और इस कॉलेज को और हमारी सोनल और हमारी गगन और ऑल द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, आप सबका बहुत। और ये बच्चे आपने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज द ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू। इसी के साथ नेक्स्ट टाइम भी कभी हम अभी शायद मिले बच्चों के सामने। थैंक यू सो मच। Model of positive psychology, very well. Thank you once again, ma'am. Thank you. Understanding happiness to actually experiencing it. Before we begin, a very honest question: how many of you are here just for attendance? I can see the faces. Don't worry, no need to raise your hands. We all believe in silent support. You know, happiness and attendance have one thing in common. We all want them, but somehow they are always less than required. So now, get ready to forget your worries, your stress, and maybe even your attendance for a while. The judges of stand-up comedy competition are Professor Ambika Bajpayee ma'am,